Hello everybody, good evening and welcome to Talking Textbooks Kota Live, okay? And हम किस चीज़ की preparation करा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, okay? So everything must have been told to you already, isn't it? So anyways, I'll just repeat quickly for you guys. So we get you prepared for 6 to 10 school level examinations, then 6th, 7th, 8th Olympiads, and also for some really amazing examinations like NTSC, NSC, JS and PRMO. Definitely not skipping the very important part, getting you introduced to our fantastic team who will be there to guide you in this journey ahead. ठीक है? So यहाँ पे आता है the very interesting part about me, and that is myself, Dr. Gitanjali Sharma, and I am a doctor by profession, a graduate from MVGU Jaipur, and also I have 3 years in this teaching line. So this was a बहुत छोटा सा part about me, and you'll get to know more about me sooner. Anyways, so here is the important section for you all, बच्चों. TTB के Telegram handle पे, if you wish to access or if you want to have a sneak peek on the study material which TTB is providing for you guys, specially designed for you guys, you can have a look at the sample material and अलग-अलग classes जो भी हैं आपकी 6th, 7th, 8th and 9th and 10th के इन links पे आप जाके उस material का एक sample review ले सकते हैं. And in case if you are interested in purchasing the entire material, all you can do is just have a look at that, and जो भी आपको package आपने according अच्छा लगता है, you can click on the buy now by visiting on the website of the Talking Textbook, that is www.talkingtextbooks.in, and then just enter the code GS Live and get a 30% instant discount. And जिन मोड्स ऑफ पेमेंट से आपको पेमेंट करना है वो क्रेडिट हो सकता है, डेबिट हो सकता है, नेट बैंकिंग और वॉलेट. ठीक है? सो हियर वी फिनिश द वेरी बेसिक थिंग. नाउ we'll start with the class, okay? But before that we are gonna make our cardinal promise, जो कि हम हर क्लास से पहले करते हैं. डेफिनेटली आप लोग सबको पता है, राइट? बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, isn't it? We need to promise ourselves for ourselves. ठीक है? So starting with the cardinal promise, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay? So here we start with our lecture. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बच्चों आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक थोड़ा बहुत आइडिया हम सबको होता है, राइट? यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, इफ वी बाय ब्रेक द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स माइक्रो एंड देन ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, है ना? वी कैन नॉट सी अभी if I'm standing here, the air I'm inhaling, you guys wherever you are sitting at your places, okay, be safe definitely. So वहाँ की air में, water में, हर जगह पर you know सिर्फ वो नहीं होता है जो हम देख पा रहे हैं, but there are organisms which we cannot see, right? जो अभी air में breathe कर रही हूँ. See, okay, so यहाँ पे बहुत सारे organisms छोटे प्रेजेंट हो सकते हैं, but I can't see, right? So that is why they are called as microorganisms. वो दिख नहीं रहे हैं, but they are existent, और यही चीज हम इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे. ठीक है? बट हमें कुछ भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हमें क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे एंड एग्जैक्टली इसको पढ़ने का रीजन क्या है. भाई फालतू तो कोई भी नहीं पढ़ेगा ना, कुछ भी लाइक ठीक है कुछ भी हमें उठा के दे दिया. वी मस्ट नो व्हाई आर वी स्टडीइंग इट, है ना? इज देयर सम इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाटएवर वी स्टडी, लाइक व्हाटएवर वी आर गोना स्टडी, राइट? सो स्टार्टिंग व्हाई दिस लेक्चर. सी, इस लेक्चर में you'll get to know the diversity of the microorganisms, है ना? ये अर्थ है, सो इसकी एक जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखते भी नहीं हैं वो भी इसमें एडअप करते हैं, राइट? सो इनके बारे में हम, इनकी पूरी डाइवर्सिटी के बारे में एग्जैक्टली ये क्या है, क्यों एग्जिस्टेंट है, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है और क्या ये यूजफुल है. सो एवरीथिंग वी आर गोना स्टडी अंडर दिस हेडिंग. ठीक है? अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, लाइक एटलीस्ट द बेसिक थिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. या दे डू एग्जिस्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे. ठीक है? देन इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या सीखोगे. यू विल नो कि where did they come from, how were they discovered. Okay, we know that they cannot be seen with the naked eyes, then how are we able to discover so many of them. हमें कैसे पता चला. Okay, इनकी टाइप्स क्या है एंड एक्सेट्रा. ठीक है? वो हम कवर करेंगे आगे. नाउ
starting with what are microorganisms. ठीक है, see बच्चों, what are microorganisms? We need to look into the definition, into the very basic thing. सबसे पहले हम यही स्टार्ट करते हैं ना कि microorganisms होता क्या है. So see, the organisms which cannot be seen with naked eyes and requires the help of a special visual aid. Okay, वो visual aid क्या है? That is a microscope. ठीक है बच्चे, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकें, उनके बारे में पता कर सकें जिनको हम नेकेड आइज से यानी कि नॉर्मल आइज से हम नहीं देख सकते, विच आर यूनिसेल्युलर. बेसिकली टॉकिंग अबाउट देम, तो दे आर यूनिसेल्युलर. ठीक है, वी नो एक सेल बहुत बहुत छोटा होता है, राइट, 10 raised to power minus something something something, राइट. सो वी कैन नॉट सी इट, है ना, नेकेड आइज से अपने एक्सक्यूज मी. सो we needed a special visual aid for that. ठीक है, और वो एड क्या डिस्कवर हुआ? माइक्रोस्कोप. सो इसको हम पूरा अगर एक साथ इनकलकेट करें तो क्या बोलेंगे कि all the organisms, all those organisms which cannot be seen with naked eyes and requires the help of special visual aids for their visualization are called as microorganisms. So I hope this term is clear to you. ठीक है, अब देखो what is microbiology. ठीक है, see if we break this term microbiology, let me just show you here. Yeah, so if we break this term microbiology, it's made up of 3 words: micro, bio and logy. So micro means something which is extremely small and cannot be seen with the naked eyes. Then bio is something which is living, okay, and then logy is the study. Are you getting my point? ठीक है, so here we go. So study of those living organisms which cannot be seen with the help of naked eyes exactly comes under microbiology. This is an entire branch for स्पेशली डिजाइंड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इन सबको हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंडर रखा हुआ है. ठीक है, सो हम स्पेशली जब भी माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं उस स्टडी को हमने क्या बोला? माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, नाउ सॉरी जस्ट अ मिनट. या सो देयर वी गो. नाउ माइक्रोब्स एंड देयर स्टडी. ओके, सी बच्चों, माइक्रोब्स जो है वो इतने छोटे होते हैं, राइट, दे आर वेरी वेरी टाइनी. अब उनको हम स्टडी कैसे करेंगे बेसिकली, है ना, लाइक यू नो, अगर हम आगे, जब आप आगे अपने स्टैंडर्ड्स में आगे बढ़ोगे, सो यू विल गेट टू नो लाइक ऑर्गेनिजम्स को किन किन बेसिस पे डिवाइड किया गया है, राइट. सिमिलरली अगर हमें कोई भी चीज़ स्टडी करना है, राइट, उसको हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं, लाइक उनको ना अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, राइट. जैसे अगर हम किसी भी एक बैंक में जाएंगे, सो एवरी सेक्शन इज डिवाइडेड, राइट. द कैश काउंटर इज डिवाइडेड, देन द query counter is another one, then you have the managers section, right. So किसी भी प्लेस को अगर आप अलग अलग जगह डिवाइड करते हो तो you get to know that place better, isn't it, कि अच्छा चलो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है. सिमिलरली माइक्रोब्स के केस में क्या है, या फिर हम किसी भी जगह को अगर हमें स्टडी करना है तो हम उनको डिवाइड करना पसंद करते हैं कुछ उनके स्पेसिफिक ट्रेट्स के अकॉर्डिंग. सिमिलरली हमने क्या किया है कि माइक्रोब्स को भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट उनके फीचर्स के बेसिस पे उनको क्या किया है? क्लासिफाई किया है ना, सो एज टू मेक द स्टडी their study a little bit more easier for it, है ना. अब वो किस बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया, let us just see here. All right, so the first is a cellular organization, यानी कि are they unicellular और are they multicellular. ठीक है, क्या वो unicellular है या फिर वो multicellular है. ठीक है, then you have got means of locomotion, how do they move from one place to another. See, हम इसके बारे में आगे देखेंगे, right, but अभी सिर्फ एक basic information I am giving you. ठीक है, then you have morphology or the body structure, exactly like bacteria अगर हम बात करें, it is a microorganism. अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारी तरह उसके 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, isn't it, ऐसा नहीं है, है ना. सो बेसिकली उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, तो वो उसके बेसिस पे अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स व्हिच आई विल बी टेलिंग यू इन द लेक्चर्स अहेड. ठीक है, नाउ reproduction, modes of reproduction, whether sexual or asexual. We have 2 types of reproduction and that is sexual and asexual. So उसके बेसिस पे भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है.
अभी तो ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस एंड देन लेटर ऑन वील गेट टू नो मोर अबाउट इट. ऑलराइट, नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. बच्चों, वी यूजुअली टेक, यू नो, मुझे पता है लाइक सोशल स्टडीज़ में जो हिस्ट्री होता है, लाइक इट्स वेरी बोरिंग, पीपल डू टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू नो, बट सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज़ का अगर एग्जिस्टेंस हमें पता करना है ना, तो इसकी हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, राइट. बिकॉज हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ आइडिया लगता है, उसके बारे में बहुत नॉलेज मिलता है. सिमिलरली, सो हियर आई एम गोना टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, वो कैसे पता चला, राइट. हाउ वॉज इट डिस्कवर्ड, कैसे पता चला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हमारे इस वर्ल्ड में, इतने डाइवर्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. सो डेफिनेटली कोई ना कोई महान आदमी का दिमाग इसमें होता ही है, और यहाँ पे भी वो महान आदमी थे सर एंटोन वान ल्यूवेनहॉक. Sorry, excuse my throat, it's not fine. 1667. So, Anton van Leeuwenhoek is also known as the father of microbiology. Okay, this is a very very important point, must be noted, and he was the only person to discover a simple माइक्रोस्कोप. ठीक है भाई, माइक्रोस्कोप नहीं होता तो वैसे भी डिस्कवरी नहीं पॉसिबल था ना माइक्रोब्स का, है ना. उसी से तो पता चला. एक्चुअली हुआ क्या था, ऑन अ फाइन डे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो हैं वो एक पॉन्ड के पास से जा रहे थे, तो उनको पता नहीं क्या सूझा. ही टुक अ कंटेनर एंड उन्होंने उस पॉन्ड में से कुछ पानी भरा, ओके, घर पे लेके गए, एंड देन ही जस्ट सीव्ड दैट वाटर, ओके. फिर उसके बाद उसमें से जो ऑर्गेनिजम्स कुछ उनके ऐसे थे जो उनको दिख रहे थे, ठीक है, एंड देन कुछ पार्ट्स को जो थोड़ा बहुत कचरा या ऐसा कुछ उनको उसमें दिखा, ठीक है. ऑब्वियसली सिंगल सेल्ड है, वो नहीं दिखेगा नेकेड आई से. सो ही जस्ट थॉट ऑफ स्टडिंग दैट, ओके. कुछ उनको दिमाग में ऐसा आया कि कुछ ऐसा हम इन्वेंट करें जिससे कि ये बहुत बहुत ज़्यादा जूम हो जाए एंड वी गेट टू नो एग्जैक्टली क्या इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं. दैट इज़ हाउ डिस्कवरीज अकर, इजंट इट. सो यही चीज़ उन्होंने किया एंड इसी से एक सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया. उसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया. दैट इज़ वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. एंड इन विच ईयर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, विच ईयर द माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड, दैट इज 1677. काइंडली नोट इट एंड ऑल्सो नोट दैट ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. नाउ लुकिंग एट द टेबल, दिस अगेन कंटेन्स different contributions of famous men, like महान लोग जो हैं हमारे इस हिस्ट्री के, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं. उनके नाम हम यहाँ पे मेंशन किए हैं ऑलरेडी फॉर यू गाइज. एंड देयर आर रॉबर्ट हुक. इन 1665 ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल्स, ठीक है. कॉर्क सेल्स जो हम देखते हैं ना ट्री के बाग से उन्होंने निकाला एंड देन उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है. और ऐसे उन्होंने कॉर्क सेल्स का डिस्कवरी किया. देन अगेन लुइस पास्चर इन 1857 ही प्रूव्ड दैट फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. अब बच्चे वी नो दैट बायोकेमिकल प्रोसेस समथिंग जो कि यू नो किसी ना किसी, सी बायोलॉजिकल, दैट मीन्स समथिंग a process which is happening lively, ठीक है, जिसमें कुछ living involved है, isn't it? ठीक है. So fermentation if we look as in a whole, we can just see कि वो process हो रहा है, but definitely cellular level पे वो कैसे हो रहा है we don't know, right? So Louis Pasteur in 1857 उन्होंने उस fermentation process को जब बहुत ज़्यादा deeply study किया, so he got to know कि fermentation किसकी वजह से हो रहा है, because of a microorganism, that is yeast, right? Now the third, Robert Koch in 1872 he discovered the bacterium Bacillus anthracis for anthrax disease, ठीक है. बहुत ज़्यादा prominent था ये disease anthrax, but he wanted to know exactly उसका causative organism क्या है ना.
तो उसके लिए उन्होंने स्टडी किया एंड ही डिस्कवर्ड बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस. ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओ हो, इनकी डिस्कवरी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज. ठीक है. एंड ऑल्सो वील एड अनदर पॉइंट हियर. फर्स्ट लेट मी टेल यू द वेरी बेसिक वन. 1929 में ही प्रूव दैट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस नेम्ड पेनिसिलियम नोटेटम. सो लेट मी टेल यू, दिस वाज द वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पहला यूजफुल एक जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, दैट वाज पेनिसिलिन, okay, which is an antibiotic which is obtained from a fungus which is called as Penicillium notatum. Kindly note, this is an important point again. So इसीलिए Alexander Fleming did a commendable job, right? अब एडवर्ड जेनर सबसे पहला वैक्सीन जो डिस्कवर किया एडवर्ड जेनर ने 1978 में, ही डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. ठीक है. सो ये था हमारी हिस्ट्री में कुछ महान लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस. All right, so now let's just move to the next slide. Now some common features of microbes. See, if we are studying about the microorganisms, like we have certain common features, है ना. humans में we respire, how do we reproduce, हमारा way of nutrition क्या होता है ना. so there are lot many things which we humans have. now ऐसे ही microorganisms के भी कुछ specific features होते हैं, right? तो सबसे पहला उसमें क्या है, modes of reproduction. Now see, अगर हम इसकी बात करते हैं, सो यहाँ पे दो तरीके के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं. वन इज द सेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज द एसेक्सुअल. ठीक है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड, और आई शुड से मोर कॉमन व्हेन इट कम्स टू माइक्रोब्स. क्यों? बिकॉज देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत प्रिमिटिव क्रिएचर्स हैं. इस अर्थ पे सबसे पहले आए थे, राइट? ठीक है. सो बच्चों, अगर हम बेसिकली अगर एक जनरल बात भी करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज, व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड इज कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एक डेवलप्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना. तो पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, दे इनिशिएटेड विद द asexual mode of reproduction which is for the primitive organisms. ठीक है. now sexual mode of reproduction जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कब अडेप्ट करते हैं, when either in special conditions, okay, not always. ठीक है. so यहाँ पे microbes reproduce both sexually and asexually, but mostly asexually. all right. now कौन कौन से हो सकते हैं वो modes of reproduction? they can be budding, okay, and then they can be binary fission. we'll be reading about it further. आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, but इसका एक बेसिक चीज मैं आपको यहीं पे बताऊंगी. and then there is conjugation. see, अगर मैं इन images को आपको explain करूं, सबसे पहला we'll just zoom a little here. can you see this? just a minute, let me, okay, just a minute, okay, there we go. and yeah, so अगर मैं इसको zoom करती हूँ little bit, can I just zoom it up? okay, anyways, I hope it's visible to you guys, right? so anyways, यहाँ पे ये एक पेरेंट प्लांट बॉडी है. इसको, ये क्या है बेसिकली? हाइड्रा है. ओके, व्हाट इज इट? दिस इज हाइड्रा. सो यहाँ पे ये एक पेरेंट बॉडी है. पेरेंट बॉडी यानी कि जिससे एक और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, है ना. नाउ कुड यू सी, यहाँ पे एक बड ओरिजिनेट हो गया है, राइट? अब ये बड जो है धीरे धीरे साइज में ग्रो कर रहा है ना. यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स आ गए, राइट? एंड देन यहाँ पे ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, एंड देन फाइनली इट गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, राइट? सो this is how the asexual reproduction takes place. asexual reproduction में क्या होता है? only a single parent is involved, and यहाँ पे एक single parent ही involved है, right? देखो, उसी की body से एक bud निकला and detach होके एक अलग individual बन गया. okay, now here can you see this? can you appreciate this thing? यहाँ पे ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे भी एक सिंगल पेरेंट है, राइट? ओनली वन. एंड देन स्लोली इफ यू कैन सी, यहाँ पे इसमें चेंजेस आते हैं इसके न्यूक्लियस में, राइट? एंड इट डिवाइड्स स्लोली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. ओके, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू हियर. डॉटर सेल्स, है ना. ओके, सो यहाँ पे भी एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था और उससे 2 बन गए.
सिमिलरली यहाँ पे भी एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, राइट? सो दिस इज ए सेक्सुअल. नाउ इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर लाइक टू पेरेंट्स इन्वॉल्व ऑलवेज, है ना? एक तो मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट. हालांकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू इज कॉन्जुगेशन. बेसिकली क्या होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, इट थ्रोज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनटू द अदर वन. कैन यू सी दिस? कैन यू अप्रिशिएट यहाँ पे? ओके, एंड इस तरीके से ये अपना जेनेटिक मटेरियल उस रॉड के थ्रू इस दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जो दूसरा ये पेरेंट है, यहाँ पे सी दिस थिंग, ओके, यहाँ पे इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है एंड देन एक अलग ऑफस्प्रिंग जो है is born. Okay, now the next thing हमने पहला देखा, which one did we see? The first was the modes of reproduction. Now the second thing is adaptation. Guys, this is very important to note. See, adaptations यानी कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बड़े ही ज़्यादा नटखट किस्म के प्राणी होते हैं. कैसे होते हैं? नटखट एज एन बहुत ढीठ, मतलब यू नो दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? कोई सा भी एनवायरनमेंट हो, कोई सा भी टेम्परेचर हो, हम तो कहीं पे भी सर्वाइव कर लेंगे. ऑल राइट, इस तरीके का होता है. ठीक है, सो there we go. Microbes are extremely tolerant. Like कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, उनको कितना भी डांट लो, कितना भी कुछ भी कर लो, उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. So ऐसे ही हमारे कुछ माइक्रोब्स होते हैं. ठीक है, सो दे लाइक यू नो दे कैन बी फाउंड इन द टफेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. उनको आप कहीं पर भी छोड़ लो, ओके, वो आपको वोल्केनोज में भी मिल सकते हैं, डीप डाउन द सी भी मिल सकते हैं, एनीवेयर दे कैन अडेप्ट एनीवेयर. सो इस तरीके का उनका पर्सनालिटी होता है. अभी जैसे हम एक नॉर्मल इंसान को, जो कि यू नो हु इज अडेप्टेड टू हीट, अगर हम उसको सडनली कोल्ड वाले एनवायरनमेंट में अगर हम लोग उसको भेज देते हैं, सो डेफिनेटली उनको वहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है. बट दैट इज नॉट एन इशू विद दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर एक्सट्रीमली कूल. ओके, सो microbes are extremely tolerant towards different environmental conditions and can survive in extreme conditions of both moisture and heat. अब ये कैसे सर्वाइव करते हैं? लेट मी टेल यू. सी, एक चीज तो उसमें क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट नो. अडेप्टेशन में ये क्या करते हैं कि सपोज देयर इज अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, ओके, क्या है ये? आई विल नेम इट एज बी. ओके, देयर इज अ बैक्टीरियम हियर. मान लो कि यू नो कुछ ऐसे, इसको आदत है बहुत आराम से रहने की, ठीक है, बट सडनली क्या, एनवायरनमेंट चेंज हो गया. जैसे मान लो ये बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में था, सडनली इसको हीट में जाके हमने पटक दिया. ओके, सो व्हाट विल इट डू इज, ये अपने आसपास जो है इस तरीके का एक स्पोर फॉर्मेशन कर देता है. क्या करता है? एक स्पोर फॉर्मेशन, एक प्रोटेक्टिव स्पोर फॉर्म कर देता है. दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन. उसको हमने क्या बोला? एंडोस्पोर. क्या बोला हमने उसको? उस प्रोटेक्टिव लेयर को बोला गया एंडोस्पोर. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना. उसके लिए तो वो कोल्ड वाला क्लाइमेट बेटर था, बट जब हीट में डाल दिया तो अनफेवरेबल हो गया उसके लिए, है ना. सो व्हाट डिड इट डिड, इसने अपने अराउंड एंडोस्पोर का फॉर्मेशन किया, ओके, एंड खुद को प्रोटेक्ट किया उस एनवायरनमेंट से. ठीक है, रेजिस्ट हो गया उस एनवायरनमेंट से. अब उसको कोई तकलीफ नहीं, अभी वो वापस से जो है आराम से स्टेबल है. ओके, एंड देन उसके बाद जैसे ही दीज अनफेवरेबल कंडीशंस सबसाइड, वापस से हम उसको जो है अगर नॉर्मल कंडीशंस में ले आए, ठीक है, तो व्हाट इट विल डू इज दिस, इट विल ब्रेक दिस एंडोस्पोर. ये इससे जो है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, है ना, एंड अगेन वुड बी अ नॉर्मल बी. ठीक है, इस तरीके से दे गेट देमसेल्व्स अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, दे कैन अडेप्ट देमसेल्व्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. ऑलराइट, सो अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है, यू नो, लाइक वी डू हैव सर्टेन पीपल जो कि यू नो दे आर लाइक लोनली बर्ड्स, आराम से अकेले भी रह सकते हैं. देन दे आर सर्टन काइंड ऑफ पीपल जिनको ग्रुप्स में ही रहना पसंद है, राइट. उनको बहुत लोनली फील होता है. इफ दे डोंट गेट देयर फ्रेंड्स, गेट टू मीट देयर फ्रेंड्स, यू नो, दे विल गेट डिप्रेस्ड, राइट. बट देन दे आर पीपल हु आर लाइक कूल अलोन, है ना, जस्ट लाइक मी. एनीवेज, सो
दे कैन सर्वाइव आइदर इंडिपेंडेंटली और इन ग्रुप्स कॉल्ड एज कॉलोनीज. सो ऐसे ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, आइदर दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली या फिर ये ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं, विच आर कॉल्ड एज द कॉलोनीज. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. नाउ the another thing, common features of microscopes में microbes में ही we have harmful microbes. Okay, see बच्चों, अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, then they are our friends as well, they are foes as well. ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ों में ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, but then again हार्मफुल भी होते हैं. सी वी डू गेट इल, इजंट इट? हमें कभी हमें वायरल हुआ है, डेफिनेटली आई थिंक सबको ही लाइफ में एक बार वायरल फीवर होता ही होता है. कोल्ड हो गया, राइट, कफ हो गया, फीवर आ गया, है ना, इस तरीके की कुछ चीज़ें. सो do we know कि what is the reason for it? Yes, microorganisms play a very big role into it, है ना. So basically they make us fall sick. Can you see this? ये देखो, ये बच्चा जो है ना, we all must have been through this sick day once in our lives, isn't it? मुझे तो बहुत बार हुआ है cold, cough and all. Yeah, I get easily infected. But again, so coming back to the point, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सेवरल डिजीजेज इन अस, है ना. सो दे आर हार्मफुल फॉर अस एज वेल, है ना. सो व्हाट डू दे कॉज? लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा. अब वो भी डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट. जैसे कि वी हैव हर्ड अबाउट वायरल फीवर. सो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हुआ, कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल होता है? वायरसेस. ओके, अब वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट वील स्टडी दैट आगे वाले लेक्चर्स में. ऑलराइट, देन वी गेट इन्फेक्टेड विद सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. हमें स्किन के इन्फेक्शंस जाते हैं कभी. ओके, वी गेट फंगल इन्फेक्शंस, तो वो एक फंगस की वजह से होता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज इन आवर बॉडी. तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. येस, दे आर हार्मफुल फॉर अस, बट ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत चीज़ों में यूजफुल भी होते हैं. जैसे वन ऑफ द प्रोसेसेस वी डिस्कस्ड इन while studying our history lecture, मतलब हिस्ट्री में जो अभी हमने लेक्चर में हिस्ट्री का जो पोर्शन पढ़ा था, we got to know about fermentation, है ना. सो फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स हमें क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहा है. वहाँ पे ईस्ट जो है फर्मेंटेशन में हमें हेल्प कर रहा है. तो ये हमें बहुत सारी प्रोसेसेस में हेल्प भी करते हैं, राइट. जैसे कि घर पे हम लोग दही जमाते हैं, राइट, मम्मा सबकी, है ना. सो वी गेट टू ईट दैट टेस्टी कर्ड. जो योगर्ट बनता है वो किसकी वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन कौन कर रहा है? माइक्रोब्स. तो यहाँ पे वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, है ना. सो बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है. इनफैक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ मेडिसिन, वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन दैट इज पेनिसिलिन. ठीक है, द वेरी फर्स्ट इन्वेंटेड एंटीबायोटिक, है ना. तो पेनिसिलिन जो है वो एक फंगस से आती है. फंगस इज व्हाट? इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. सो पेनिसिलियम नोटेटम जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था अभी, ठीक है, जस्ट फ्यू स्लाइड्स बैक, यू कैन जस्ट चेक इट आउट लेटर अगेन अगर आप भूल गए हो तो. सो देन सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करना, है ना, उसमें भी माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हम ओवरऑल बच्चों क्या बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं, राइट. दे आर सम विच आर रियली हेल्पिंग अस इन आवर प्रोसेसेस, डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस. कुछ में वो हमें हेल्प करते हैं, बट देन अगेन हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं नॉट ऑल माइक्रोब्स आर गुड, but then again not all are bad, right. So there we go. See, now the next thing we come across is कि exactly ठीक है, हमने बोला कि naked eyes से we cannot see them, right. We cannot see them via the naked eyes, and then but then again there has to be हमारे साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया इन पे, राइट. We even know इतने छोटे से टाइनी क्रिएचर्स का हमें साइज भी पता होता है कि एग्जैक्टली हाउ, लाइक व्हाट इज देयर साइज, व्हाट आर देयर शेप्स एंड एवरीथिंग. सो अंडर मॉर्फोलॉजी और द बॉडी स्ट्रक्चर वी स्टडी कि इनका साइज क्या है ना, इनका शेप क्या है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका साइज वेरी करता है, ठीक है. कुछ तो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं काफ़ी छोटे होते हैं. सो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर दे कैन वेरी, है ना. अब दूसरा, कैन यू सी दिस, जस्ट अ मिनट, सी हियर, या. सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है बैक्टीरिया की, कुछ बैक्टीरियाज की शेप्स. द स्फेरिकल
then you've got rod like, then you've got spiral. See, तीनों के shapes में differences we can easily see, है ना, we can easily note the differences in their shapes. Spiral कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है. Then you've got rod like which is also called as bacillus. See, like this, है ना, इस तरीके से. Then you've got spherical. Okay, इनको हम क्या बोलेंगे? Caucus shaped, ठीक है. Rod shaped. Okay, these are spherical. Then यहां पे हमने बोला spiral. Okay, so इस तरीके different shapes में these bacteria exist. ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे. Okay, so for now then उसके अलावा अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स, उनको हम एग्जैक्टली माइक्रोब्स नहीं बोलेंगे, बट या देन दे आर लाइक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर बट देन मल्टी सेल्युलर एज वेल. जैसे कि अगर हम फंगस की बात करते हैं ना, फंगाई, मशरूम, आई थिंक कुछ लोगों को लाइक एडिबल मशरूम्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, राइट, स्पेशली इन योर पिज्ज़ाज वी यूज़ मशरूम्स, है ना. सो कैन यू सी दिस, ये तो हालांकि वाइल्ड मशरूम्स है ना, नॉट एडिबल, बट देन अगेन वी कैन, हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि वी कैन सी दिस फ्रॉम आवर नेकेड आइज, इजंट इट? व्हाई? बिकॉज दे आर मल्टी सेल्युलर. सो कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि हम आगे ब्रॉडर टर्म्स में अभी देखेंगे, ठीक है. बेसिकली कहाँ का डिवाइडेड है? बैक्टीरिया, ओके, वायरस, फंगाई, एल्गी, ओके, ठीक है. तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या प्रोटोजोन्स एज वेल, यस, ठीक है. सो इनमें से यूनिसेल्युलर भी होते हैं तो मल्टी सेल्युलर भी होते हैं. जैसे कि फंगस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, सो इट इज यूनिसेल्युलर एज वेल, तो इट इज मल्टी सेल्युलर. मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या? मशरूम्स. ओके, व्हाट इज द एग्जाम्पल? लाइक दिस, मशरूम्स. अब देखो इसका जो शेप है दैट इज what kind? Cylindrical. All right, है ना, ठीक है. So this is cylindrical, है ना. Now can you see this virus shape? This is absolutely अलग. जैसे बैक्टीरिया था वैसे इसके साइजेस एकदम क्या है? अलग. वेट, हाँ. सो एनीवेज, सो यू कैन इजीली सी यहाँ पे वायरस का शेप अलग है, देन यू हैव जो फंगस है मशरूम, इसका शेप अलग है. सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि देन इनके साइजेस वेरी करते हैं, इनके शेप्स भी वेरी करते हैं. ऑलराइट, देन हियर वी गो. अब देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातों में से एक है, वो ये है हैबिटेट. सी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इतने टाइनी होते हैं एंड इतने डाइवर्सिफाइड होते हैं कि ये ऑलमोस्ट हर जगह अर्थ के हर एक प्लेस में, बीट सॉइल, बीट वाटर, इनफैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं. यस, एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल्स वेरी सून. ऑलराइट, बट पहले फोकसिंग, हैबिटेट क्या होता है बच्चों? हैबिटेट वो प्लेस होता है जहाँ पे कोई इंसान, यू कैन फाइंड दैट पर्सन, लाइक, है ना, उनका अपना एक टेरिटरी जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है. लाइक हमारा हैबिटेट क्या होता है? वो घर जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं. सिमिलरली अगर हम इसका एक बेसिक डेफिनेशन देखें, सॉरी, सो इट वुड बी द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज फाउंड, है ना. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं. सो दे आर फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी प्लेस, बीट सॉइल, वाटर, वॉल्केनोज, डीप इन द सी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के ऊपर, हमारी नोज में, एवरी प्लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड, ठीक है. सो इनके हैबिटेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं. ऑलराइट, है ना. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, यस, सो देखो हमारी बॉडी में भी अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच अगेन हेल्प्स, मैं आगे आपको एक एग्जांपल दूंगी बहुत शॉर्टली, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस में हेल्प भी करते हैं, राइट, ठीक है. सो लाइक फॉर एग्जांपल यू गॉट ई कोलाई, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ई कोलाई. लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू. यू गॉट E. कोलाई. ई कोलाई जो होता है ना बच्चों, ये हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है. कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइन में, ठीक है.
सो बेसिकली ये वहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारी इंटेस्टाइन से इसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन, है ना, इसको क्या मिल रहा है हमारी इंटेस्टाइन से, न्यूट्रिशन, एंड रिटर्न में ये हमें दे रहा है क्या, विटामिन के, क्या दे रहा है, विटामिन के, और ये विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, किसके लिए जरूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। दिस इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ यू विश टू कैरी, ठीक है। सो बेसिकली इसको बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये बताना कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं तो अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, सी नाउ विल बी टॉकिंग कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, वो कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि किस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, नाउ व्हाट इज पैरासिटिज्म, अगर वेट जस्ट अ मोमेंट, या लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप, या पैरासाइट्स, देखो हमें इतना तो बेसिकली पता ही है, लाइक वी नो कि व्हाट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में ये होता है बच्चों, व्हाट इज पैरासिटिज्म, दैट इज जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है, क्या करता है, डिराइव करता है, जैसे हैव यू सीन मस्कीटो, है ना, लाइक वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड मस्कीटो बाइट्स हमारी लाइफ में, है ना। सो मस्कीटो जो है वो हमसे क्या डिराइव कर रहा है, ब्लड, उससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है ना। सो इट इज अ पैरासाइट। सिमिलरली यूनिसेलुलर लेवल पे भी देयर आर सर्टेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरों से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। सो वी टुक एन एग्जांपल ऑफ मस्कीटो, तो सिमिलरली दिस इज अ केस विद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या now the next part, and that is, yeah, now can you see this, can you see these, देखो ये एक worm shaped structure है, can you see this, right? So you know हमारे पेट में हम बोलते हैं ना हमें कीड़े पड़ गए, ऐसा होता है ना कभी कभी, एंड देन इन आवर स्टूल्स ऑल्सो वी गेट सच वर्म्स। तो वो बेसिकली क्या है, वो पैरासाइट्स हैं, है ना, जो कि हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। दूसरा हमें या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो फीड करते हैं उसको हार्मफुल भी रहते हैं, राइट, उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। सो पैरासिटिज्म में या फिर हम बात करें पैरासाइट्स की, दे आर ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है, कभी भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होते वो, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग, सिम्बायंस। नाउ सिम्बायंस क्या होते हैं, सी सिम्बायंस यानी कि दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, क्या, दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे के साथ भी रह रहे हैं, ठीक है, एक उसको बेनिफिट पहुंचा रहा है, एक उसको बेनिफिट पहुंचा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी फॉर्म में बेनिफिशियल है, ओके, एंड ऑल्सो दे आर लिविंग टुगेदर, ओके। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। अब जैसे जो राइनोसॉरस के ऊपर ये जो बर्ड्स हैं छोटे छोटे, ओके, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ईटिंग ऑल द माइट्स एंड टिक्स विच आर प्रेजेंट ओवर इट्स हेड, और उसको जो इरिटेशन दे रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये जो राइनो है ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, किससे, बाकी एनिमल्स से, ठीक है, सो दैट दे कुडंट बी किल्ड, ठीक है। So this is what happens in other symbiotic relationships when it comes to a unicellular level as well, और even multicellular symbiotic organisms इस तरीके से जो है अपना डेली का लाइफस्टाइल गुजर बसर करते हैं, ठीक है। So yeah, now the last is saprophytic. This is something to be noted. इसमें क्या है, the organism is feeding on the dead and decaying matter, ठीक है, किस पे, डेड एंड द डीकेइंग मैटर। जैसे बच्चों अगर हम लोग आपको एक सिंपल एक्टिविटी अगर मैं करने बोलूँ, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इट ऑल्सो, है ना, जैसे अगर हम कोई ब्रेड मोल्ड है ना, या फिर कोई भी एक चपाती है, यू नो, कभी कभी हम देखते हैं वो यू नो कुछ बहुत ज़्यादा अगर पुरानी हो गई है तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है ना। एंड स्पेशली अगर आप करके देखो, जस्ट कीप अ ब्रेड, ओके, उस ब्रेड को आप बाहर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, उसके ऊपर छोटे छोटे ना इस तरीके के मोल्ड, जैसे यहाँ देख रहे हो अभी छोटे छोटे जो मशरूम्स टाइप, ये पता नहीं एक कौन सा बहुत ज़्यादा, यू कैन सी फ्रॉम द लाइक कलर, बहुत ज़्यादा पुराना कुछ डीकेड मैटर है, उसके ऊपर ये फंगस उग गई है ना।
सी, कैन यू सी दिस? ठीक है, तो सैप्रोफाइट्स बेसिकली डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक, काइंडली नोट, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके की रिलेशनशिप भी इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। ऑल राइट, सो गाइज आई होप दैट आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। काइंडली नोट, बिफोर वी इनिशिएट द सेकेंड लेक्चर यू मस्ट बी वेरी 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 वेल एक्वेंटेड विद ऑल द टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज। अभी तक हमने क्लास में जो भी पढ़ा यू मस्ट बी नोइंग, ओके। एंड उसके अलावा अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। एंड आई होप you loved the lecture. Thank you so much.